मैं उन चीज़ों को फॉलो करता हूँ जो मेरे मेंटर फॉलो करते हैं, बिकॉज मुझे पता अगर मेरे मेंटर जो मेरे गुरु है अगर वो मुझे कुछ पढ़ा रहे तो उन्होंने कुछ रिसर्च करके ही पढ़ा होगा। जस्ट एक इमेजिन कीजिए एक 60 ईयर ओल्ड आपके घर में इम्प्लांट्स लग चुके हैं लेकिन अभी तक उनको दांत नहीं मिले हैं, तो जस्ट इमेजिन कीजिए मैम 2 to 3 months वो क्या अचीव करेंगे। जस्ट खाली मिक्सी में सब कुछ करके पी जाना, दाल खिचड़ी खाना। इवन इफ मैं पेशेंट्स को जिनको मैं इम्प्लांट लगा देता हूँ मैं उनको स्ट्रेट एक बात बोलता हूँ, इन सबको नॉर्मल खाना सारा खाना है। एक एज के बाद में आपको पौष्टिक खाना चाहिए होता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड, गुड अमाउंट ऑफ फूड, वो आप आराम से खा सकते हो। और ये चीज़ इसका स्ट्रेंथ चेक करने के लिए नहीं बनी कि आप इससे बीटल नट्स च्यू करें और कोई भी चीज़ से आप करेंगे आप अल्टीमेटली अपने जॉब उनको इम्प्लांट करेंगे। सो नॉर्मल फूड आप खाइए, हाइजीन मेंटेन रखिए, फॉलोअप के लिए कोई इशू नहीं आएगा। Today we have Dr. Arun K. Bingani with us. Welcome, sir, to the podcast. नमस्ते, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण। Dr. Arun K. Bingani, a highly specialized oral surgeon and an implantologist, and is a head of Simpladent Concept Surat. He has an immense educational background, including a top honor degree in his field and a gold medalist award too. Dr. Bingani has also gained international experience and training in Germany, which enable him to provide world-class care to his patients. With over 8 years of experience in dentistry and surgery, including 7+ years specialization in advanced implant technique, Dr. Bingani is an expert in this field. So Dr. Bingani, could you share a bit about your journey in dental implants and why you opt for this specific cortisobasal implantation? Right, ma'am. Like I have done my graduation from 2010 to 2015. In graduation, we have been taught for all the studies, like different kind of streams available in dentistry. So we have been taught as general dentist. After finishing my general dentistry in 2015, I went for 2016 to 2019 for my specialization. That was into oral and maxillofacial surgery. So in simple terms, like the name is too big, but if someone asks me what you do, I say I operate everything from neck to this face part. It includes road accident surgery, it includes cosmetic, it includes implant, jaw surgery, this and that, everything. So my specialization in joint face surgeries known as maxillofacial surgeons. So when I was doing my post-graduation, in just first year, I was exposed to this immediate implantology, or you can say immediate functional loading implantology. What does it mean? It means that you deliver a fixed teeth to a patient within 14 to 72 hours. He can go to home and he can start chewing food from his artificial teeth. So this immediate functional loading I was exposed in my first year of PG 2016. I was lucky to have one of the finest mentor in the world who has taught me this science. It has fascinated me so much that you can deliver such result in a short amount of time where compared to the conventional methods. So first of all, the time factors, because we can say time is money, but sometimes time is more precious than money. Second is comfort factor. It is flapless. What does a flapless means? You don't need to have put a cut to open your skin. You can directly punch and you can place your implants. Second thing is the comfort of patient. Third and most thing is those cases in which we cannot restore a patient's jaw, artificial like a teeth using conventional method or denture method. In those cases also we can rehabilitate using corticobasal implantology. So this three advantage, this three positive point has turned my life towards the implantology. You can say this towards the corticobasal implantology. Okay. तो आपका ये सिम्प्लाडेंट का कॉन्सेप्ट कैसे डिफरेंट है उन पुरानी टेक्निक से, और क्यों लोगों को ये फॉलो करना चाहिए या ये प्रोसीजर के लिए जाना चाहिए और पुरानी टेक्निक्स के लिए नहीं? मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँगा। मेरे लिए जैसे मुझे मेरे मेंटर सिखाते हैं कि कंपनीज आती है, तरीके आते हैं, मेंटर्स आते हैं, सब चीज़ आती है और चली जाती है, लेकिन जो कॉमन रहता है वो है कॉमन सेंस एंड द बेसिक साइंस, जो कॉमन ही रहने वाला है। मैं उन चीज़ों को फॉलो करता हूँ जो मेरे मेंटर फॉलो करते हैं, बिकॉज मुझे पता अगर मेरे मेंटर जो मेरे गुरु है अगर वो मुझे कुछ पढ़ा रहे तो उन्होंने कुछ रिसर्च करके पढ़ा होगा, अदरवाइज वो मेंटर नहीं बन पाते। आज वो जिस लेवल के मेंटर है, सो मैं उनसे आस्क नहीं कर सकता सर ये क्यों,
वो मुझे रीजन से अच्छा मुझे टेक्निक समझाते कि ये इस तरीके से होगा. सो सिम्प्लाडेंट जिनसे मैं एसोसिएट हूँ, दे आर एसोसिएट विद इंटरनेशनल इम्प्लांट फाउंडेशन, IF जो फाउंडेशन है. इस फाउंडेशन के पास में सबसे बेस्ट डाटा कह सकते हो, नंबर ऑफ पेशेंट डाटा, नंबर ऑफ लिटरेचर्स, आर्टिकल्स, जो टेक्निक तरीका है मैम. देखिए, इम्प्लांट इज नॉट जस्ट कि आप बोन में एक स्क्रू को लगा दिया खत्म हो गया, नहीं, वहाँ से तो कहानी शुरू हुई है. उसके बाद में उसमें दांत का प्रॉप एक पार्ट आता है, उसके बाद में उसका फॉलोअप का पार्ट आता है. तो ये जब इन टोटल की बात करते हैं मैम, सो इंटरनेशनल इम्प्लांट फाउंडेशन है दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा. सिम्प्लाडेंट, दे बोथ आर एसोसिएटेड. सो सिम्प्लाडेंट क्लिनिक्स या सिम्प्लाडेंट जो है, ये आपको प्रॉमिस करता है कि वी डिलीवर और 100%. Result is up to God, but in effort, in science, in everything, we don't compromise for a single thing also. So how is this immediate loading implant is different from the old or the previous conventional methods? Yeah. Right, ma'am. I will just give you two words. One is delayed, one is immediate. Okay. So delayed यानी कन्वेंशनल इम्प्लांट, जो पुराना तरीका होता है, वो ऐसे बोन में लगता है जो बोन में या बोन जो अपने जॉ के जो बोन होते हैं जिसमें टीथ रहते हैं, वो उसी बोन में लगता है. जो कॉर्टिकोवेजल इम्प्लांट्स हैं वो थोड़े से डीपर बोन को एंगेज करता है. सो मैम, दोनों जो इम्प्लांट्स हैं, कॉमनली हम दोनों को इम्प्लांट्स ही कहते हैं, लेकिन कन्वेंशनल इम्प्लांट एक अलग टाइप के बोन को एंगेज करता है, कॉर्टिकोवेजल एक अलग टाइप के इम्प्लांट को एंगेज करता है. इस वजह से दोनों का फंक्शन चेंज है. कन्वेंशनल को अगर आप जल्दी लोड करेंगे तो वो फेल हो सकता है. इमीडिएट इम्प्लांट्स को आप अगर डिलेड लोड करेंगे तो ये फेल हो सकता है मैम. सो द नेम इज सेम, डेंटल इम्प्लांट्स, बट द साइंस, द डिजाइन, एवरीथिंग इज ईस्ट वेस्ट. हम हमारे ऑडियंस से हमेशा और ये हमें सुनने को मिलता है कि जब वो इम्प्लांट्स के लिए गए हैं और उनकी एज 50 से ज़्यादा है, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होते हैं इम्प्लांट्स कराने. ऐसा क्यों? जी मैम, जैसे ग्रोइंग एज में हम लोग का ग्रोथ होता है, एक बच्चा होता है, उसके बाद जब वो एडल्ट बनता है, उसकी हाइट, बिल्ड सब कुछ बढ़ता है. एक एज के बाद में वो स्टैटिक हो जाता है. स्टैटिक होने के बाद में उसमें डाउनफॉल आना शुरू होता है, मोस्टली फीमेल में 45 साल की उम्र के बाद में मेनोपॉज आता है. 45 के बाद फीमेल में और अराउंड 50-55 के बाद में मेल में. सो जब ये एक फेज आता है ओल्ड एज का, तो अपनी बॉडी रिग्रेशन की तरफ ज़्यादा जाती है. इन सच सिचुएशंस अपनी जो बोन है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू हो जाती है. इसीलिए आप देखेंगे कि एक बच्चा जितना भाग सकता है, एक नौजवान जितना भाग सकता है, उतना एक उम्र वाला वर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका ओवरऑल हेल्थ में इफेक्ट होना शुरू होता है. सेम विद जॉ, जो जबड़े का बोन है वो भी वीक होने शुरू होते हैं. इसलिए जो उम्र के साथ में दांत हिलना या सड़े हुए दांत को निकालना, तो ये सब स्टेप बाय स्टेप होते होते एक फेज ऐसा आ जाता है कि जब एक बुजुर्ग व्यक्ति के मुंह में कोई भी दांत नहीं बचे होते हैं. अब उसे रेस्टोर करवाना है, तो चाहे वो डेंचर लगवाए, जैसे निकालने पहनने वाला हो गया, चाहे वो सेमी फिक्स लगाए, चाहे इम्प्लांट्स लगाए. सो ऑप्शंस, आप जैसे आज पेशेंट अगर मेरे पास आता है, मैं उसको एम्फेसाइज इस चीज़ के लिए नहीं करता कि ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है. मैं अपनी तरफ से सारे ऑप्शंस खोल देता हूँ जो पॉसिबल है. ऐसा नहीं कि जिसमें मुझे डाउटफुल है कि मैं ये कर दूंगा फिर, क्योंकि अब पेशेंट्स गिनी पिग नहीं होते जिन पे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा. सो जो पॉसिबल ऑप्शंस है, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, पॉसिबल रिस्क, वो सारे समझा देता हूँ. देन पेशेंट हैज टू चूज कि भाई हाँ, मेरे को डेंचर कीजिए या इम्प्लांट कीजिए. सो इन सच केसेस भी जहाँ कन्वेंशनल इम्प्लांट से हम लोग रेस्टोर नहीं कर सकते, जो डिलेड इम्प्लांट्स है, जिसको कन्वेंशनल मतलब इम्प्लांट लगाने के बाद में पेशेंट को कहा जाता है कि उनको 3 से 4 महीने के बाद में दांत मिलेगा, उन सारे केसेस को या फिर उनमें से मोस्ट ऑफ केसेस को कॉर्टिकोवेजल इम्प्लांट या फिर इमीडिएट फंक्शनल लोडिंग इम्प्लांट्स हम लोग रिहैब कर सकते हैं. जैसे हमें पता ही है कि आजकल बहुत भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो गई है, लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले गए हैं, हम सिर्फ भाग रहे हैं, हमारे पास टाइम कम है. तो ये इमीडिएट इम्प्लांट एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है या एक अच्छा तरीका हो सकता है, और लोगों को ऑप्ट करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, हम ट्रीटमेंट करते हैं, आप और मैं अभी इस एज में नहीं आए कि हम इम्प्लांट्स लगवाए, लेकिन आप जस्ट एक इमेजिन कीजिए, एक 60 ईयर ओल्ड आपके घर में इम्प्लांट्स लग चुके हैं लेकिन अभी तक उनको दांत नहीं मिले हैं. तो जस्ट इमेजिन कीजिए मैम, 2 to 3 months वो क्या च्यू करेंगे? जस्ट खाली मिक्सी में सब कुछ करके पी जाना, दाल खिचड़ी खाना. इवन इफ मैं पेशेंट्स को जिनको मैं इम्प्लांट लगा देता हूँ, मैं उनको स्ट्रेट एक बात बोलता हूँ, इन सबको नॉर्मल खाना सारा खाना है, ट्राई नहीं करनी इसकी स्ट्रेंथ कितनी है. और सामने मैं ये भी बोलता हूँ कि ये दांत मैंने खिचड़ी कटी दाल भात खाने के लिए नहीं दिया, मैं आपको रूटीन फूड च्यू करने के लिए दिया.
सो 2 to 3 months का जो टाइम होता है मैम, वो इन द एंड पेशेंट को क्या चाहिए मैम, फिक्स स्टिच चाहिए एज सुन एज पॉसिबल विद बेस्ट रिजल्ट. दैट्स ऑल. So, how is this simpler dent approach is helping the NRIs who are coming to India for seeking dental services? ट्रू मैम. एनआरए गुजराती सीजन है जिसमें ऑलमोस्ट विंटर्स के टाइम में जो बाहर के एनआरए है वो इंडिया आते हैं. एक शॉर्ट पीरियड टाइम लग जाता है मैम. फर्स्ट कीजिए, कोई अगर पेशेंट नवंबर में उसने अगर डिलेड इम्प्लांट लगा, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्टली जनवरी फरवरी तक उसको टीथ मिल सकते हैं. इमेजिन कीजिए सॉरी, वो अगर जनवरी में इंडिया आया, उसे फिक्स टीथ चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं कि भाई मैं उसमें डिलेड इम्प्लांट्स आज लगा दूंगा और उसे मैं कहूँगा कि भाई 3 months के बाद में वो बोलेगा सर मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, अब अगले साल इम्प्लांट लगा. नहीं मैम, इन सच केसेस हम इसे इमीडिएट इम्प्लांट लगा के रेस्टोर कर सकते हैं. सो टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट है बट रिजल्ट में कोई फर्क नहीं. इवन इफ अर्ली भी जो आते हैं, अगर वो भी ऑप्ट करना चाहे, उसमें कोई एतराज. So what is the benefit of this in older age? मतलब this immediate implants are beneficial in an older age. And how? जी, जैसे कि मैंने आपसे कहा मैम कि एक एज के बाद में बोन की क्वांटिटी और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू हो जाती है मैम. लेकिन एक सर्टेन पार्ट ऑफ बोन होता है जो इंसान जब जन्मता है तब से लेकर जो इंसान डेथ बेड पे होता है, जब वो गुजरता है, तब तक वो जॉ का वो एक बोन वाला पार्ट वो उसके बॉडी में एग्जिस्ट करता ही है. सो जो कॉर्टिकोवेजल इम्प्लांट्स है वो उस टाइप के रिजॉर्प्शन स्टेबल बोन कहा जाता है कि जो जैसे थे वैसे ही रहते हैं, ये उससे एंगेज कर देता है. How can patient have result after the process? मतलब how long does the result show and how long is the process? True ma'am. See, if a patients follow instructions first and foremost मैम, दांत लगाए इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी खाना शुरू कर दें. या तो मैं अगर पेशेंट को फॉल्स प्रॉमिस भी कर देता हूँ कि आप इससे ये कर सकेंगे, आप वो कर सकेंगे, मैम वो खाना खाने से उनके नेचुरल दांत ही नहीं बचे तो ये क्या बचेंगे. एक एज के बाद में आपको पौष्टिक खाना चाहिए होता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड, गुड अमाउंट ऑफ फूड, वो आप आराम से खा सकते हो. और ये चीज़ इसका स्ट्रेंथ चेक करने के लिए नहीं बनी है कि आप इससे बीटल नट्स च्यू करें और कोई भी चीज़ से आप करेंगे, आप अल्टीमेटली अपने जॉ बोन पर इम्प्लांट्स को डेमेज करें. सो नॉर्मल फूड आप खाइए, हाइजीन मेंटेन रखिए, फॉलोअप के लिए कोई इशू नहीं आएगा. चाहे हमारे गुजराती ऑडियंस हो या कोई भी ऑडियंस हो, सेफ्टी हमेशा प्रायोरिटी पे रहती है. तो सिंपला डेंट ऐसा सेफ्टी क्या मेजर्स लेता है कि लोगों को अट्रैक्ट करे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग पैसा नहीं लगाना चाहते, बट उनके लिए सेफ्टी प्रायोरिटी है आज के टाइम में. जी मैम, कोई भी इम्प्लांट प्रोसीजर या कोई भी माइनर सर्जिकल प्रोसीजर जब कैरी करना होता है मैम, तो एक सेटअप चाहिए होता है. इमरजेंसी बोल के नहीं आती है, इमरजेंसी लाइफ में 1 या 2 बार आती है, बट वो उस दिन आपको टेस्ट करके चली जाती है. सो बिफोर टेकिंग दिस सिंपला डेंट क्लिनिक्स सूरत, उसके पहले वो सेफ्टी अश्योर करता है कि हमारे पास में सारे बैकअप फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है. कई बार जब इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन आती है वो बोल के नहीं आती, इसलिए उसे इमरजेंसी कहा जाता है. सो ऑन टेबल इमरजेंसी उसे फेस करने के लिए हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स तैयार है, उसके बाद ही वो हम उसे सिंपला डेंट क्लिनिक के नाम से स्टार्ट करके उसे हम दे सकते हैं. So how much reliable these immediate implants are? मैं आपको करेक्शन करूंगा, बुरा नहीं मानिएगा, आप इसे इमीडिएट फंक्शनल इम्प्लांट्स कहिएगा मैम, बिकॉज इमीडिएट इम्प्लांट्स यानी इमीडिएट इम्प्लांट तो मैंने डाल दिया, टीथ में बाद में दूंगा. फंक्शनल मतलब डाला है, आप घर जाके इम्प्लांट लगाए, आप घर जाके खाना खाइए. सो इट इज इमीडिएट फंक्शनिंग इम्प्लांट. वो शब्दों का खेल कई जगह लोग खेलते हैं, लेकिन उसका भुगतना पेशेंट को पड़ता है. Thank you sir for correcting me. But what kind of a lifespan this implants have? That once it is installed, how long a person can There are n number of patients मैम जो इस दांत के साथ में गुजरे हुए मैम. सो उनका हिस्ट्री हम नहीं ले पाएंगे. रेस्ट जो रिमेनिंग है मैम, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये उन बोन में लगता है जो इंसान जब गुजरता है तब तक अवेलेबल होता है, तो इसकी स्ट्रेंथ सेम चीज़ हुई. लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस दिए उसे फॉलो करना है और फॉलोअप्स के लिए जाना है. सो मोस्टली मैम कोई इशू नहीं आता है, बाकी ऊपर वाला मालिक होता है इन चीज़ों. इसका ये मतलब होगा कि अगर बोन लॉस हो रहा है तो इम्प्लांट्स थोड़े इफेक्टिव नहीं होंगे एज कंपेरेटिवली जिसका बोन लॉस नहीं हो रहा है उससे. Can you explain the science behind this full process, this functional immediate implant?
यस मैम, ये जो कंसेप्ट है ये डेंटल से पहले जो ऑर्थोपेडिक्स का कंसेप्ट है, ये इमीडिएट फंक्शनल लोडिंग इम्प्लांट्स ऑर्थोपेडिक्स के कंसेप्ट का एक आप उनसे इंस्पायर होकर कह सकते हो कि जिस तरीके से ऑर्थोपेडिक्स प्लेट्स एंड स्क्रू होते हैं, सो जो इनिशियल इम्प्लांट्स थी ये उनकी डिज़ाइन से बने इंस्पायर होकर बने हुए थे। सो उसमें भी है कि जैसे प्लेट्स एंड स्क्रू लगा, उसके बाद में हम पेशेंट को मोबिलाइज करा देते हैं कि भाई आप थोड़ा स्लोली वॉक करना शुरू कर सकते हैं। सो वो टाइप के कॉर्टिकल बोन यानी मिनरलाइज्ड बोन मतलब ऐसे बोन जो कैल्शियम फॉस्फेट के लिए डेंस बने हुए होते हैं। सो इमीडिएट फंक्शनल लोडिंग इम्प्लांट ऑल्सो नोन एज कॉर्टिकोवेचल इम्प्लांट्स, उन इम्प्लांट्स जो है वो ऐसे बोन को एंगेज करते हैं जो इस टाइप के बोन बने हुए। सो इस वजह से मैम हम इसे इमीडिएट लोड कर सकते हैं। How does the design of this implant accommodate patient with complex dental issues? These are, ma'am, you can say polished implants, rough surface implants. So multiple designs and types of implants are multiple, मतलब selected number of there variety of implant sizes and designs are available according to patient's condition, according to dentist perception of treatment. We can pick any of them. So again, yes, Simpladent is having that multiple options for the same patients, and you can treat one patient in many different way, getting one result that is success result. तो ऐसा क्या एडवांसमेंट आया टेक्नोलॉजी में कि जो इम्प्लांट का प्रोसेस इतना लंबा होता था उसे शॉर्ट कर दिया एंड इट इज इफेक्टिव आल्सो? कुछ भी नया नहीं, क्या नहीं, पहले था, आज भी है और रहेगा। मैंने आपको जैसे बोला बेसिक साइंस। जो डिफरेंस है वो एंगेजमेंट ऑफ बोन आ गया, यानी जो नॉर्मल इम्प्लांट है उसमें जिस बोन में इम्प्लांट लगाया जाता है ये वाला बोन उससे थोड़ा सा अलग जगह पे पाया जाता है। डिस्टल कह सकते हैं कि उससे थोड़े से दूर या थोड़े से डीपर बोन्स हो गए। सो ये इम्प्लांट से उन बोन को एंगेज करता है, वो भी इम्प्लांट से ये भी इम्प्लांट से, वो भी बोन को एंगेज करते हैं ये भी बोन को एंगेज करता है, बट दो डिफरेंट। वो कैंसलस को एंगेज करता है, ये कॉर्टिकल को एंगेज करता है। कैंसलस इज लाइक एल्वेलर बोन जो दांत के आसपास होता है, कॉर्टिकल इज लाइक जॉ बोन जो जॉ को सराउंड करता है। हमारे ऑडियंस को ये हेल्प हो जाएगी ये जानने में अगर आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस अपने पेशेंट का बताएं जिसने ये इम्प्लांट कराया हो और उसके फीडबैक्स क्या थे या वो उसको कैसा लगा, उसके बाद क्या चेंजेस आए उसकी लाइफ में। मैम ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं, मतलब आपको पूछना नहीं होता है क्या चेंज है, मतलब मेरा ये बोलना है कि जब मैं उनको देखता हूँ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब उनको 2 से 3 दिन के अंदर दांत लग जाते हैं, जब उनको दिखाया जाता है जो दांत लगा है, वो एक कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर। सेकंड, जब वो खाना शुरू करता है, आप उनका वेट पुट ऑन देख सकते हो मैम। जो पेशेंट आपके पास फॉलोअप के लिए दोबारा आता है, आप देख सकते हो वो वेट पुट ऑन करके आए, एकदम रेडी हो के आए। सो वो चीज़ बताती है। मैं उनसे अगर पूछूँ नहीं ना कि आपको कैसा है, वो उनका जो पोस्चर होता है, उनका जो स्टाइल होता है या एटीट्यूड होता है या आने का तरीका होता है, वही मुझे बताता है कि सब कुछ अच्छा होना शुरू हो गया मैम। क्योंकि एक एज के बाद में 3 चीज़ों में प्रॉब्लम आती है मैम जो मैंने देखा। एक होती है आई साइट, दूसरा होता है नी और तीसरा होता है दांत। ये तीनों चीज़ जब कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो पेशेंट की लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होनी शुरू होती है। तो मैं सिर्फ दांतों के लिए नहीं, मैं घुटनों के लिए भी बोलता हूँ, मैं आंखों के लिए भी बोलता हूँ कि जब लगा आपको कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तब कराना चाहिए। क्योंकि आज हम जिस एरा में बैठे हुए हैं मैम, हमारे पास में बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में नहीं थी। सो अगर आपके पास में फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपको उसका पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। अच्छी बातें तो हैं, ऑब्वियसली मेथड बहुत अच्छा है और बहुत चीज़ें ये आसान कर देगा एक इंसान की जिस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम जी रहे हैं। बट कोई तो ऐसा डाउनफॉल या कुछ ऐसा एक डिसएडवांटेज होगा जो पेशेंट एंटिसिपेट कर सके कि ये हो सकता है या ये एक शॉर्ट कमिंग हो सकती है। मैं इस साइंस की नहीं, मैं पूरे मेडिकल साइंस की बात करता हूँ। कोई भी मेडिकल साइंस का कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर, कोई भी ट्रीटमेंट 100% नहीं होता है कि मैंने जितने भी पेशेंट्स के उसमें सब में सक्सेसफुल रिजल्ट है मैम। वो या तो अगर कोई इंसान ऐसा बोल रहा है कि उसने 100% सक्सेस रिजल्ट दिए तो 2 बात है, या तो वो झूठ बोल रहा है या तो उसने नंबर ऑफ केसेस उसने करके नहीं रखे मैम। चीज़ें, पहली बात केस सिलेक्शन मतलब इसमें ही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बेस्ट सर्जन वो होता है जिसे पता होता है व्हेन नॉट टू ऑपरेट, कि मुझे इस केस को कब उस वे में ऑपरेट नहीं करना है मैम। तो सबसे पहले मैम केस सिलेक्शन आता है। सेकंड है, चलिए केस हुआ, पेशेंट ने फॉलो अप रखा, सब कुछ रहा। कई बार मैम कुछ चेंजेस होते हैं जो इंसान के खुद के हाथ में नहीं होते हैं, हार्मोनल चेंजेस जैसे बोला जाता है। वैसा कोई सिचुएशन आया, फेल हुआ, वो चीज़ एक अलग बात होती है। फेल हो सके, मैं बोलूँगा कि ट्रीटमेंट फेल नहीं हुआ, मुझे उसमें और एफर्ट डालनी पड़ी।
अब अगर कोई पेशेंट को एक कॉम्प्रोमाइज कंडीशन लेके आता है, सो ऐसा नहीं कि उसको रेस्क्यू नहीं कर सकते हैं, उसको आराम से रेस्क्यू किया जा सकता है। इसीलिए जब हम कोई भी सर्जरी करते हैं तो हमको पता होता है कि इसमें और भी अच्छा बोन अवेलेबल है, क्या पोजीशन, हम ऑलमोस्ट ब्रीफ समझ में आता है। पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि आप चीविंग में ध्यान रखिए, आप रेगुलर फॉलोअप के लिए जरूर आएगा कि कहीं कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो तो तभी हम उस चीज़ को रोक सकेंगे। सो अगेन मैं बोला कि ये मैं ऐसे नहीं बोलूँ कि 100% सक्सेस रेट है, इट इज अवेलेबल, बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आपको मिल सकता है। हमारे जितने भी ऑडियंस हैं या जितने भी लिसनर हैं, चाहे वो गुजराती हो, चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, इंडिया से हो, किसी भी पार्ट भारत की किसी भी जगह से हो, उनको ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि ये जो इमीडिएट फंक्शनल इम्प्लांट है, इसका कॉस्ट, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा एज कंपेरेटिवली जो पुराना हमारा इम्प्लांट सिस्टम था उससे। मैम इम्प्लांट्स अगर है तो थाउजेंड्स में नहीं आते, वो लैक्स में आते हैं। फुल माउथ इम्प्लांट्स की बात मैं कर रहा हूँ मैम। सो पेशेंट का जो है खर्चा वो उससे ऑलमोस्ट लैक्स में जाना होता है, पेशेंट टू पेशेंट में वेरी करता है। और ऐसे ही एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपकी हेल्थ के ऊपर है और इंसान को अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर उनको अपनी दवाइयों का खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा बचाना हो, हेल्दी रहना हो, तो उसके लिए उनको प्रॉपर डाइट, अच्छा डाइट खाना जरूरी है। अगर अच्छा डाइट है तो आप एटलीस्ट उन पार्ट्स को आप स्किप कर सकते हो। तो इस फेज में अगर आप डेंटल में इन्वेस्टमेंट करते हो तो मेरी नज़र से वो कोई गलत चीज़ नहीं है। बिल्कुल। तो आपका क्या एडवाइस होगा ऑडियंस को कि वो ये थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें करें, क्योंकि ये अच्छा प्रोसेस है और ये आपको ज़्यादा लिबर्टी देता है टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। आपको ना टाइम वेस्ट करना है, ना आपका कुछ भी, बहुत जल्दी ये प्रोसेस है। तो ऐसा क्या एडवाइस लोगों को देना चाहेंगे कि दे पुट इन मोर मनी एंड फॉर अ वैल्यूएबल सिस्टम? मैं इसमें कहूँगा कि हर महंगी चीज़ अच्छी नहीं होती, हर सस्ती चीज़ बुरी नहीं होती है। जिसके लिए जो बना है वो परफेक्ट होता है मैम। सो मेरा है कि सही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप डेंचर बनवाते हो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रॉपर तरीके से डेंचर बने। और मैं डेंटिस्ट को भी बोलूँगा जो डेंचर्स बनाते हैं कि पेशेंट को आप चीट मत कीजिए। अगर आप चार्ज कर रहे हो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सामने उस तरीके का रिजल्ट दीजिए जो पेशेंट एक्सपेक्ट करता है। आप ट्राई कीजिए कि उसके रिजल्ट को मैक्सिमम फुलफिल कर सकें। आप चाहे डेंचर कराएं, आप चाहे इम्प्लांट कराएं, जो भी रिजल्ट है या फिर जो भी पेशेंट जो पैसा लगाता है उससे उस लेवल का मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी फिर पेशेंट की चॉइस है, वो डेंचर बनवा जाते हैं जिसे हम रिमूव कर सकते हैं, चाहे वो फिक्स करवाएं, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा सही होना चाहिए। ये वैसे मेरा पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा, बट ऑडियंस भी ये जानना चाहती हूँ कि कई ऑडियंस, मैं खुद हूँ जिसे सर्जरी से डर लगता है, तो ऐसे कई लोग होंगे जो शायद इस मेथड में इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको डर लगता है सर्जरी से और पूरे प्रोसेस से, उनको कॉम्प्लिकेशन लगती है इस प्रोसेस में। तो आप एक बार ब्रीफ करें कि इज इट समथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ या टू बी गिवन अ डबल थॉट? मैम मैं पेशेंट को ज़्यादा समझाता नहीं हूँ। ज़्यादा समझाता मतलब मैं उनको मेरे सर्जरी के वो फोटोज़ नहीं दिखाता हूँ कि भाई मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। मैं उनको क्लियरली समझाता हूँ, आपको फिक्स टीथ चाहिए, आपको फिक्स टीथ मिलेंगे, क्या अमाउंट आपका चार्ज है, इतने बार आपको आना पड़ेगा, दैट्स ऑल। जो उनके बेटे या बेटी या इन लॉज होते हैं, जो दामाद जमाई जो लेके आते हैं, उनको मैं समझा देता हूँ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशंस वगैरह सारे होते हैं। अब अगर मैं फैसिनेशन के लिए मैं पेशेंट को दिखाऊं कि मैं ऐसे लगाऊंगा वैसे लगाऊं, तो मैं पेशेंट टेंस हो जाता है। अगर पेशेंट टेंस्ड होगा तो फिर वो कोऑपरेट नहीं कर पाएगा। सो पेशेंट को आप उतना बताइए जितना उनको जानना जरूरी है मैम। अब ज्यादा बता के अगर मैं दिखाऊं कि मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं जॉ सर्जन हूँ, मैं ये सर्जरी कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, सो पेशेंट टेंशन में आता है कि भाई मेरे को सिर्फ इम्प्लांट लगाना है, तो उतने छोटे से काम के लिए मैं इतने बड़े डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, कल को उठ के कुछ हो जाए, वो ये यहाँ से स्किन हटा दे, वो खोले, ये सर्जरी करे, वो कीप इट सिंपल, फिक्स टीथ चाहिए, इमीडिएट फंक्शन लोडिंग चाहिए, बात खत्म, दैट्स ऑल। आपने इतने सारे पेशेंट देखे हैं तो बड़े सारे मिसकंसेप्शन लोग लेकर आते होंगे, तो आप उनके साथ कैसे डील करते हैं और क्या क्या मिसकंसेप्शन है लोगों के जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं फॉर द इम्प्लांट? मिसकंसेप्शंस में हम दो तरीके से आते हैं। एक तो पेशेंट अगर खुद सर्च करके आता है ऑनलाइन तो मिसकंसेप्शन इकट्ठा होता है। सेकंड है जब सब डेंटिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत कम होते हैं लेकिन वो बहुत इफेक्ट कर जाता है कि वो डेंटिस्ट उनमें कोई मिसकंसेप्शंस डालते हैं। मेरा ये बोलना है कि अगर आप कोई साइंस के बारे में नहीं जानते हो, आज मैं भी, अगर मैं आज कोई मुझसे पूछे कौन सी कार अच्छी है, अगर मैं नहीं जानता तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। तो सेम चीज़, अगर जो इंसान जिसके बारे में नहीं जानते हैं वो इस पर क्रिटिक्स नहीं करे तो मिसकंसेप्शंस को हम कम कर सकते हैं। सिर्फ डेंटल फील्ड में नहीं, आप चाहे ऑर्थोपेडिक्स में जाए, चाहे गायनेक में जाए, न्यूरो सर्जरी में जाए, प्लास्टिक सर्जरी में जाए, ऑन्को सर्जरी में जाए, किसी फील्ड में भी मिसकंसेप्शंस या तो ऑनलाइन से आते हैं या तो फिर एक
डॉक्टर के द्वारा दूसरे के पेशेंट को समझाया जाता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट के हमें अगर खुद अपने आप को ठीक कर ले तो हम इसको 50% कम कर सकते हैं। मिसकंसेप्शंस में बहुत होते हैं और रिजिड मिसकंसेप्शंस और कॉमन होते हैं। मैं मतलब डील करता हूँ, मैं पेशेंट को एक बार समझाता हूँ, मैं उनको क्लियरली बोलता हूँ कि अंकल आपको मैं समझाया पर आप मेरी बात नहीं मानोगे, मैं अभी से बोल देता हूँ। क्योंकि मैं ऐसे पेशेंट में हर रोज देखता हूँ, मुझे पता है क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। कई बार ये होता है कि जब उनको सबने ना बोलते थे कि भाई आपकी इसमें फिक्स्ड टीथ पॉसिबल नहीं है, अगर मैंने उनके इन्वेस्टिगेशंस और सब देख के मैंने बोला कि हाँ आप में फिक्स्ड टीथ पॉसिबल है, तो उनको मेरा हारास नहीं आता है, उनको उनका नाराज आ जाता है कि भाई जब वो ना बोल रही तो ये कैसे लगाते हैं कि मैं पूरा एक अलग फील्ड से बिलोंग करता हूँ, मैंने एक पूरा अलग ट्रेनिंग लिया है, मैं अलग मेंटोर से ट्रेन हुआ हूँ, एक पूरा अलग साइंस है। वो ये चीज़ नहीं समझेंगे, उनको बस ये है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कि भाई ये इनको करना है इसलिए बोलते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसे एन नंबर ऑफ केसेस है जिसमें ना बोलने के बाद भी उसे प्रॉपर तरीके से उन पेशेंट्स को फिक्स्ड टीथ दिए गए हैं और आज भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। सर्वाइव नहीं, वो हैप्पीली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कई पेशेंट अब्रॉड से आ रहे हैं इस ट्रीटमेंट के लिए और आएंगे, तो आप उनको क्या ऐसा एडवाइस देना चाहते हैं कि उनको समझ आ जाए ये प्रोसेस कितने ड्यूरेशन का है, कितने दिन उनको स्टे कर रहा है, सो दैट वो उस माइंडसेट से आए कि उनको इतना टाइम इस प्रोसेस में लग सकता है, ये चीज़ें और ये प्रोसीजर से उनको गो थ्रू करना है। जैसे कि 48 आवर्स में वी कैन कंप्लीट फ्रॉम नो टीथ टू फिक्स इट, मतलब मुंह में अगर एक भी दांत नहीं है और मैं सारे दांत लगा दूँ 48 घंटे जैसा टाइम लग जाता है। अगर उनको चाहिए कि भाई मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, कंटिन्यूस नहीं जाना है, ओल्ड एज वाले रहते हैं, ठीक है 2-4 घंटा ऊपर नीचे हो तो मुझे कोई इशू नहीं रहता। जो भी काम होता है मैम वो पेशेंट के कंफर्ट जोन में किया जाता है, मेरा काम कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कि मुझे उनको रिजल्ट देना है। सेकेंड चीज़ है थोड़ा सा ड्यूरेशन में इसलिए मांगता हूँ ताकि वो इंडिया में रह के फूड को च्यू करके देख सके, उनको कोई दिक्कत है तो ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ। यू कैन से अराउंड 10 days to 15 days एक्स्ट्रा चाहिए होता है कि भाई वो च्यू करे, कोई दिक्कत है मुझे बोले तो उसे मैं करेक्शन जो करना कर सकूँ। सो अ स्पैन ऑफ 20 days ट्रीटमेंट हो गया, 10-15 days का फॉलोअप हो गया, देन पेशेंट इज फ्री टू गो। एंड हाँ, जब भी वो विजिट करते हैं इंडिया, फॉलोअप इज मैंडेटरी, उनको हमेशा मुझे दिखाने आना है, चाहे प्रॉब्लम हो कि नहीं हो, ये उनका शेड्यूल फिक्स है। तो इसलिए मेरी पूरी टीम में फॉलोअप्स के लिए वर्क करती है कि जो पेशेंट्स को रिमाइंड कराती रहती है कि भाई आपका फॉलोअप के लिए आना। पेशेंट्स कई बार बोलते हैं कि भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उस टाइम का वेट नहीं करने की कोई दिक्कत आ जाए, आप चेकअप कराते रहिए, इस बारे उनका हमारी मुलाकात होती रहती है। तो ये फॉलोअप का कितना ड्यूरेशन रहता है या फॉलोअप कितने टाइम इंटरवल बाद कराना चाहिए? मैम यूजुअली एक बार ट्रीटमेंट सेट हो जाता है उसको अपने एनुअल फॉलोअप बोला जाता है, एनुअली पेशेंट आता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। कॉम्प्लेक्स केसेस जो होते हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स केसेस, उसमें हम थोड़ा सा फॉलोअप को 3 months या 6 months पे शिफ्ट करते हैं। वो ट्रीटमेंट के पहले से उन्हें ब्रीफ कर दिया जाता है मैम कि इस तरीके से रहेगा, ताकि ट्रीटमेंट के बाद में उनको शॉक नहीं लगे भाई इसमें तो बार बार आना पड़ता है। वो जस्ट उनके लिए जस्ट चेकअप करते हैं। हमारे बहुत सारे लिस्टर मेजरली सूरत से हैं और गुजराती कम्युनिटी से हैं वर्ल्ड वाइड, तो ऐसा क्या अप्रोच या क्या आप ऐसा उनके लिए उनकी स्पेशल नीड्स के लिए आप ध्यान देंगे, या ऐसा क्या आप करते हैं कि उनको उनकी सारी स्पेशल नीड फुलफिल हो जाए? मैं पेशेंट की जो ट्रू नीड्स होती है मैं उसी को फुलफिल करता हूँ, मैं और किसी चीज को मैं एंटरटेन नहीं करता। इट डजंट मैटर कि वो सूरत से है वो कहाँ से है। मैं पैन इंडिया ऑपरेट करता हूँ, बहुत कम को, मतलब एक वक्त है कि शायद सूरत में कई लोग मेरे को अभी भी जानते नहीं, क्योंकि मैं सूरत में कम, मैं इंडिया में आज इस सिटी में हूँ तो कल उस सिटी में हूँ। मेरे केसेस पाइल्ड अप रहते हैं इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट्स के, तो मेरे लिए एनआरआई हो, चाहे इंडियन हो, चाहे अमेरिकन हो, अफ्रीकन, यूरोपियन, कोई भी हो, वो इंसान ही रहने वाला है मैम। तो मैं जैसे बोला साइंस को, तो ट्रीटमेंट से कोई मेरे फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे लिए पेशेंट है, मैं उनके लिए डॉक्टर हूँ। दैट्स ऑल मैम। सेकंड है कई सारे, जैसे आपने बोला स्पेशल, अब जैसे मेरा एक्सपर्टी फील्ड मैंने आपको बताया जॉइंट फेस सर्जरी का, जॉइंट फेस सर्जरी, लेकिन 2 टाइप के क्लाइंट्स मेरे पास हमेशा सबसे ज़्यादा आते हैं विंटर्स में। एक होते हैं विजडम टूथ वाले, जो मेरे एज के होते हैं, जिनको विजडम टूथ आफ्टर 18 years की एज में परेशान देना शुरू करता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो कनाडा बेस्ड है या फिर यूके यूएसए में पढ़ते हैं, वो विजडम टूथ का पेन को वहाँ बेयर करके आते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि इंडिया में निकालना ईजी कंफर्टेबल है। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट ओनली अबाउट फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कि फाइनेंशियल डिफरेंस है, स्टिल अगर आज भी कोई प्रोसीजर, अगर आपको इंडिया में डेंटल ट्रीटमेंट कुछ भी कराना है, इट इज कंपैरेटिवली वे इजी कंपेयर टू द फॉरेन नेशंस। सो यंग पेशेंट्स मोस्टली, उनको मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी होते हैं कि भाई आप जब विंटर्स में इंडिया आए हो, गेट योर विजडम टूथ एक्सट्रैक्टेड। सो वन ऑफ माई स्पेशल क्वालिटीज के विजडम टूथ निकालने में मैं मिनिमम पेशेंट को डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करता हूँ। दिस रिव्यू इज नॉट बाय मी, दिस रिव्यू इज गिवन बाय माय पेशेंट्स
सो एक इसके लिए मेरे पास सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं विंटर में, यंग एज वाले और ओल्ड एज वाले प्लांट्स के लिए। सो दोनों चीज़ अपने वहाँ पे अवेलेबल है। अदर देन दिस जनरल डेंटिस्ट्री भी अवेलेबल है, लेकिन ये विजडम टूथ रिमूवल और इमीडिएट इम्प्लांट्स ये मेरी मोनोपोली है। सर कोई भी ऐसी स्पेशल सर्विस या एकोमोडेशन सर्विस जो सिंपला डेंट प्रोवाइड करता हो सो दैट और ज़्यादा NRIs आएँ हु आर सफरिंग दिस प्रॉब्लम, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि लोग इसलिए आना नहीं चाहते क्योंकि उनको डर लगता है कि सर्विसेज नहीं मिलेगी, एकोमोडेशन नहीं मिलेगा उस प्रोसीजर के अराउंड। तो कुछ सिंपला डेंट ऐसा कोई अप्रोच अपना रहा है? सिंपला डेंट क्लिनिक सूरत, जो सूरत में भी है मैम, इट इज़ वन ऑफ द convenient area, you can say posh area, you can say easily accessible area, who has good number of hotels nearby to my clinics. It is just, you can say, 10 minutes from airport, 20-25 minutes from Surat railway station. So convenience भी easy है, accommodation भी easy है मैम, और comfort, clean comfort जो बोलते हैं ना मैम, वो patient definitely feel करेगा सब clinic सूरत में। अच्छा सर, बट कुछ ऐसे इमीडिएट लाइफ पाते हैं, तो कुछ बहुत ही मेजर कोई ऐसा चेंज हो उनके लाइफस्टाइल में आफ्टर द इमीडिएट फंक्शनल इम्प्लांट? सोशली मैम वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। आज अगर कोई डेंचर पहन रहा है, वो किसी कभी बात करते तो आपने कई बार सुना कि बात करते करते डेंचर गिर जाते हैं। कई आपने यूट्यूब वीडियोज या शॉर्ट्स देखे होंगे, हम हंसते हैं क्योंकि हम वो नहीं, हम उनकी जगह पे नहीं है, हमें देख के अच्छा लगता है कि भाई इनकी डेंचर गिरी है। एम्बेरेसिंग फील होता है। वो सोशली एक्टिव होना बंद हो जाते हैं, वो पार्टीज गैदरिंग्स में जाना बंद कर देते हैं। जब फिक्स टीथ लगता है मैम, वो खुल के जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अब ये गिरने वाला चीज़ नहीं है मैम। कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है मैम, वो लोगों से मिलना शुरू करते हैं, बात प्लस फूड एंजॉय कर सकते हैं मैम। आई हैव सीन दिस रिजल्ट्स मैम। तो कई लोग बहुत हिचकिचाते हैं इन इम्प्लांट्स कराने से पहले या इम्प्लांट्स में जाने के पहले, जैसे आपने बोला कि वो कॉन्फिडेंट हो जाते, तो ऐसी क्या एडवाइस आप उनको देंगे, कैसी मोटिवेशन होगी कि दे शुड गो फॉर दिस प्रोसीजर? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज फेथ। अगर मेडिकल फील्ड एग्जिस्ट करती है तो मैम उसमें मिरेकल्स, फेथ, ये सब कुछ, साइंस है, एफर्ट्स है, लेकिन उसके साथ में उतना ही रोल फेथ का भी है। तो मेरा ये बोलना है कि आप कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, ना सिर्फ डेंटिस्ट, आप चाहे जैसे मैं बोला गायनेक, ऑर्थोपेडिक, फिजियोथेरेपिस्ट, आपका उस डॉक्टर पे फेथ होना जरूरी होता है। कोई भी डॉक्टर कभी जानबूझ के किसी का बुरा नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे अपने हार्डशिप, अपने फेम, नेम की होती है कि भाई मेरा फेम नेम नहीं बिगड़ना चाहिए। सो डॉक्टर्स मोस्टली 100% अपना देना प्रेफर करते हैं। तो पेशेंट्स को हमेशा अपने, चाहे वो छोटा सा डॉक्टर हो चाहे वो बड़ा डॉक्टर, उसे फेथ होना चाहिए। डॉक्टर के लिए पेशेंट छोटा बड़ा नहीं, उसके लिए वो पेशेंट रहेगा, चाहे उसका रिलेटिव हो या एक नॉर्मल पेशेंट हो, चाहे एक हॉकर हो, सब्जी बेचने वाला हो, या फिर कोई बिलियनियर हो। तो मैम उसके लिए ही इज जस्ट कैटेगराइज्ड एज पेशेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। सो उसके लिए भी डॉक्टर शुड बी कैटेगराइज्ड एज डॉक्टर। आपका या सिंपला डेंट का क्या नेक्स्ट स्टेप होगा कि हाउ टू इम्प्रूव, या क्या नेक्स्ट करें और इम्प्रूवमेंट लेकर आएं इन द फील्ड ऑफ कीप अपडेटिंग आवरसेल्व्स। मैंने पढ़ लिया, मैं सब जानता हूँ, फुल स्टॉप लाइफ में कभी नहीं होता है। लाइफ इज ऑल अबाउट कॉमर्स, चाहे वो कुकिंग हो, किचन वाली बात हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल फील्ड हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे फाइनेंसिस हो, कोई भी चीज़ हो, हमेशा इंसान को अपडेटेड रहना चाहिए। तो सिंपला डेंट कंटिन्यूस एजुकेट करता था, जो रिसेंट साइंसेस है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट ला सके वो अपने आप को। अगर आप इसमें सेटिस्फाई हो गए ना कि भाई मैं सब जानता हूँ, आप लाइफ में कभी कुछ नहीं सीख सकते हो। आपको हमेशा सोचना कि लाइफ इज ऑलवेज अबाउट लर्निंग, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो आप अपने आप को हमेशा एक्सेल करने की ट्राई करते हो मैम। तो सेम विद सिंपला डेंट, जिनसे मैं, जो मेरे मेंटर्स हैं, डॉक्टर वेद कौर सर, डॉक्टर स्टीफन डे सर, ये अपने आप को इम्प्रूव करते हैं कि भाई पिछले वाली चीज़ थी उसमें ये इम्प्रूवमेंट ला के हम और अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर सकते हैं, या और हम इस रेस्क्यू केसेस ला सकते हैं, कोई किसी का कोई फेल्ड हुआ हम उसे इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो ये चीज़ में always a scope of development, yeah, there's always a scope of development. सर आपका स्पेशलाइजेशन हमने आपके इंट्रोडक्शन में ही सुना, आपका एक्सपीरियंस 8 साल से ज़्यादा है, आप इसमें स्पेशलाइज हैं, बट ऐसे कौन से पर्टिकुलर 2-3 प्रॉब्लम्स है जिसके पेशेंट जब उस प्रॉब्लम को फेस करे तो उनके आगे बड़ा बड़ा नाम लिख रहा है डॉक्टर अरुण के बंगानी जैन, और उनको आपके पास आना चाहिए? मैम ऐसे फील्ड बहुत ब्रॉड है, लेकिन 2 चीज़ है जो ऐसी चीज़ है कि आप रात को मुझे 12 बजे भी करना, ऑपरेट करना बोले, मैं करने को हमेशा पसंद करता हूँ, आई लाइक इट। एक है विजडम टूथ रिमूवल, जिसे हम अक्कल झाड़ कहते हैं, जो 18-20 साल के बाद में यंग एज में आना शुरू होता है। अगर कोई यंग मेरा फ्रेंड है,
यंगर ब्रदर सिस्टर्स हैं जो अक्कल झाड़ के विजडम टूथ के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो जब उनको ख्याल है कि ये हो रहा है तब उनको दिमाग में डॉक्टर अरुण के बेंगानी, या फिर कई लोग मुझे डॉक्टर जूनियर बेंगानी भी पता है, एक वो नाम आना चाहिए। सेकेंड है इमीडिएट फंक्शनल लोडिंग इम्प्लांट्स, also known as corticobasal implants, also known as basal implants, also known as strategic implants। जब इन इमीडिएट वर्ड्स का ख्याल है तब उनके सामने ये नाम आए, वो कंसल्ट करे। ट्रीटमेंट एक सेकेंडरी ऑप्शन है, वो मुझे कंसल्ट करे। अगर उनको मेरा चीज़, मेरा तरीका, मेरी बात, बताई हुई बात समझ में आए, दे कैन ऑप्ट ट्रीटमेंट एट माय क्लिनिक, सिंपल क्लिनिक। सर कोई मैसेज जो आप यूथ को देना चाहते हैं? क्योंकि आजकल हमारा कंट्री यूथ पे चल रहा है, वी आर एट अ फेज जब यूथ ये सारी चीज़ें सुनते हैं और हम यूथ को ही एम्पावर कर रहे हैं, हमारा मेन टारगेट ही वही है। मेरा ये बोलना है मैम, देखिए जैसे मैं 2 एज ग्रुप बताया, यंग एज एंड ओल्ड एज। जो यंग एज वाले पेशेंट आते हैं मैम मेरे पास में, उनके पास में एंथुसियाज्म, पैशन, एनर्जी एक फिनोमिनल लेवल की होती है। ओल्ड एज वाले आते हैं मैम, उनके पास में कोई वो मतलब ऐसा लगता है कि वो दिन गिन रहा होता है, वो उस फेज में होता है मैम। बट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, लाइफ लेसन जो वो शेयर करता है मैम, वो अनबीटेबल, अनमैचेबल होता है। वो चीज़ यूथ के पास में नहीं होता है। यूथ के पास में एंथुसियाज्म पावर है, इनके पास में वो नहीं है, तो दोनों को मिक्स अप करना चाहिए। आई ऑलवेज एडवाइस कि अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स है, हफ्ते में आधे घंटा या 1 घंटा कब उनके पास बैठ के उनसे सीखे ना कि ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आप रिपीट नहीं करना चाहेंगे अपनी लाइफ में, वो आप मेरे को बताइए। वो खुशी से आपको बताएंगे, एज अ मेंटर गाइड करेंगे, और उससे बहुत फर्क पड़ता है। एक आपको आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, देख मैंने ये गलती की थी, आप बेटा ये चीज़ में ध्यान रखना। वो चीज़ें अगर आपको यंग एज में जितना जल्दी मिलेंगी, आप अपनी लाइफ को एक डिफरेंट लेवल पे ले जा सकते हैं। जहाँ तक इम्प्लांट की बात रही, आपने बहुत अच्छे बेनिफिट बताए कि हमारा लाइफस्टाइल डिटोरिएट हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस डिटोरिएट होता है, इसलिए हमें इम्प्लांट्स कराने चाहिए। बट उसके अलावा भी कोई डिसबेनिफिट्स, कोई हेल्थ बेनिफिट्स जो अगर हमारे पास इम्प्लांट्स नहीं है, हमारे दांत नहीं है, तो एक ह्यूमन फेस करेगा? 3 चीज़ में फेस होता है। एक होता है लुक्स में, मैं सीक्वेंशियल बताऊंगा। सबसे पहला होता है लुक्स में, सेकंड होता है स्पीच में, थर्ड होता है चीव में। चीविंग इज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सेकंड हो गया उसके स्पीच में। छोटा बच्चा होता है वो तुतला के बोलता है क्योंकि उसके मुंह में तब दांत नहीं होते हैं। अब देखिए जैसे उसके मुंह में दांत आना शुरू होते हैं उसकी स्पीच क्लियर होती है। और थर्ड आता है लुक्स का। सो ये तीनों चीज़ अफेक्ट होती है, तो इन तीनों चीज़ को न्याय मिलना चाहिए ट्रीटमेंट से। और जब आपके पास इम्प्लांट्स के पेशेंट आते हैं तो वो इन तीनों में से मेजरली कौन से सेक्शन से आते हैं? कि लुक्स को फोकस रख के आते हैं कि वो अपनी हेल्थ और अपनी च्यूइंग कैपेसिटी को उसमें रख के आते हैं? बहुत कम है मैम जो स्पीच को लेके आते हैं। मोस्ट ऑफ च्यूइंग को कि हम खाना नहीं खा सकते, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं लुक्स को लेके आते हैं। बिकॉज़ पीपल आर नॉट कॉन्फिडेंट। सर हम लोग आजकल अपने फ़ोन के अराउंड दुनिया बना लेते हैं। लोग अब ऑनलाइन क्लासेस में बिलीव करते हैं, लोग अब ऑफलाइन क्लासेस नहीं जाना पसंद करते। इवन इफ़ यू सी द अटेंडेंस इन कॉलेज स्कूल, आप देखेंगे ज़्यादा है। तो लोग अब ऑनलाइन कंसल्टेंसीज लेना चाहते हैं, या वो ऐसे व्हाट्सएप के थ्रू या मोबाइल के थ्रू आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इज़ इट पॉसिबल, या कोई कॉन्स्ट्रेंट्स हैं? टिल अ सर्टेन लिमिट मैम। अगर पेशेंट को मेरे पास अपॉइंटमेंट बुक कराना है, इट इज़ पॉसिबल। अगर पेशेंट को ये जानना है कि इम्प्लांट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसका चार्जेस क्या लगेगा, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल मैम। मेडिकल फील्ड ऑनलाइन नहीं चलती है। नॉलेज में, अगर मैं एक प्रोफेसर हूँ, जैसे मैं कॉलेज में लेक्चर कर लूँ, उसे मैं ऑनलाइन दे लूँ, नॉलेज डिलीवर क्या वो हो सकता है। अब अगर उसे मुझे प्रैक्टिकल कैडेवर दिखाना है, जैसे मुन्ना भाई MBBS में दिखाते हैं कैडेवर वो रखा जाता है उस पर, तो वो ऑनलाइन नहीं हो सकता है। उसके लिए ऑफलाइन ही ज़रूरी होता है। तो अगर किसी को अपॉइंटमेंट बुक करानी है, दे कैन टेक अपॉइंटमेंट्स, लेकिन फाइनल डिसीजन, फाइनल प्राइस अमाउंट, टाइम ड्यूरेशन सब कुछ जानना है, वो फेस टू फेस होगा तो ही बेटर होगा। अदरवाइज मैम इतने सारे क्वेरीज है, आप कहीं भी नहीं कर सकते हैं। सर आप सूरत बेस्ड हैं, तो कोई एक प्यारा सा मैसेज हमारे गुजराती लिसनर्स और ऑडियंस के लिए, बट इन गुजराती प्लीज। જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જિનેન્દ્ર। મારું નામ ડૉક્ટર અરુણ કમલસિંહ બેંગાની છે। હું ડેન્ટિસ્ટ છું। ડેન્ટિસ્ટમાં આગળ મેં જો એન્ડ ફેસ સર્જરીમાં માસ્ટર ડિગ્રી કરેલી છે, અને એની સાથે સાથે મેં ઇમિડિયેટ ફંક્શનલ લોડિંગ ઇમ્પ્લાન્ટ્સ, એટલે કે એવા ઇમ્પ્લાન્ટ્સ જેને તાત્કાલિક લગાવીને તાત્કાલિક તમને દાંત આપીને તમે ઘરે જઈને તમારું રૂટીન ખોરાક ચાલુ કરી શકો, એમાં મેં મારી માસ્ટરી કરી છે। મારા ગુરુઓથી મેં એનું જ્ઞાન લીધેલું છે। સો એમ કહેવાય છે કે સુરતનું જવણ ને કાશીનું મરણ, તો
કાશી માટે તો તમને નહીં મોકલીશ, પણ સુરતના જમણ માટે તમને બધાને આમંત્રિત કરવા માંગુ છું. અને જમણ એ તમે એન્જોય કરી શકો, સારી રીતે ચાવી શકો, એની માટે હું કહીશ કે તમારી પાસે દાંત હોવા જોઈએ ચાવવા માટે. અને જો એવા દાંત નથી તો હું બેસેલો છું, ડૉક્ટર જુનિયર અરુણ મેઘાની તમને દાંત આપવા માટે બેસેલો છે. અને એની સિવાય ખાલી ગુજરાતી સુરતના નહીં, તમે ગમે ત્યાંથી હો, તમે કોઈ પણ ઇન્ડિયાના પાર્ટમાં હો, તમે સુરત ટ્રાવેલ કરી શકો છો આ ટ્રીટમેન્ટ માટે. ટ્રીટમેન્ટ સેકન્ડ નંબરની વાત છે. જસ્ટ ટુ ગેટ મોર અબાઉટ ધીસ સાયન્સ, આના વિશે વધારે જાણવા માટે તમે અપ્રોચ કરી શકો છો. So there are NRIs from all over the world who come for medical facilities and getting medical jobs done. So what is your message to them so that they feel ease, they feel welcome to you? मैम मैं उनमें से नहीं हूँ कि जब पेशेंट की फाइल में वो देखते हैं NRI है तो मेरा एक अलग प्राइस लिस्ट वहाँ पे आके होना, क्योंकि मेरे लिए मैं जैसे कहा, चाहे वो इंडियन पेशेंट हो, चाहे NRI हो, चाहे मेरा रिलेटिव हो, चाहे अननोन पेशेंट हो, चाहे हॉकर हो, चाहे बिलियनर हो, मेरे लिए वो पेशेंट ही रहेगा. मैं अपनी प्राइस लिस्ट उसके हिसाब से कभी चेंज नहीं करता हूँ. सेकंड है, वो कहीं से भी बिलोंग करते हो, आज अगर वो सूरत है या फिर जैसे कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रीटमेंट हुआ तो वो पॉसिबल है. ये मेरा एक साइंस सिर्फ सूरत वालों के लिए नहीं है, मेरी ये सर्विस सिर्फ सूरत वालों के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, नहीं सिर्फ गुजरात वालों के लिए, नहीं सिर्फ इंडिया वालों के लिए. इट इज़ अक्रॉस द ग्लोब. वो चाहे कहीं से भी अगर मेरे पास ट्रीटमेंट कराना आता है, मोस्ट वेलकम. सर आजकल एंजाइटी हर जगह वर्ड यूज़ हो रहा है, हर जगह आप देखेंगे एंग्शियस पेशेंट मिलते हैं. सो लोगों को डेंटल एंजाइटी भी बहुत होती है, दे डोंट वांट टू विजिट द डॉक्टर, शायद हाइजीन का होगा, जो भी उनके दिमाग में मिसकंसेप्शंस हैं. तो ऐसे कोई 5 पॉइंट्स विच कैन ईज देयर डेंटल एंजाइटी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एक इंसान की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती. अगर आपको किसी डेंटल या मेडिकल फील्ड में कहीं पे एक खराब एक्सपीरियंस हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि सारे डॉक्टर सभी उस तरीके के हैं. आपको हमेशा चीज़ों को सेकेंड ट्राई देना चाहिए. ना सिर्फ चीज़ों को, आपको लाइफ में भी हमेशा हर चीज़ को एक बार रिव्यू ज़रूर करना चाहिए मैम. सेकेंड है, डेंटल से क्यों फियर होता है मैम? डेंटल से ज़्यादा उनको फियर होता है निडल से. जब बच्चा छोटा होता है वो शरारतें करता है, हम कहते हैं कि सुई लगा देंगे. तो तब से उसके माइंड में वाइट कोट फिर आना शुरू हो जाता है. सो पेरेंट्स को बोलूँगा कि इस चीज़ को वो एक एलिमिनेट कर दे तो एक ईजी रहेगा. थर्ड है, डेंटल का हाइजीन वाली बात है मैम. तो मोस्टली डेंटल में हाइजीन मेंटेन किया जाता है. आपको मैं जैसे एक पेशेंट में जो सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो मैं नहीं, चाहे एक छोटी से छोटी डेंटिस्ट क्लिनिक वाला बैठा हो या मुझसे एक बड़ा जिनके पास चेंज ऑफ डेंटल क्लिनिक हो, वो हमेशा इस हाइजीन का टेक केयर वैसे करता है कि जैसे उस चेयर पे वो खुद बैठा है एज अ पेशेंट और वो चाहता है कि डॉक्टर वैसे ट्रीट करे. सो हाइजीन का इसलिए मोस्ट ऑफ डेंटिस्ट में 100%, लेकिन मोस्ट ऑफ डेंटिस्ट में हाइजीन का ध्यान रखते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हुई इसलिए. और डेंटल ट्रीटमेंट, फोर्थ पॉइंट एक बोलना चाहूँगा कि डेंटल ट्रीटमेंट आपको आज नहीं तो कल करवानी पड़ेगी. फियर आप चाहे आज ब्रेक करो, आप चाहे कल ब्रेक करो, फियर तो ब्रेक करना ही है. आप जितना उसे लेट ब्रेक करेंगे, आपका जो रिजल्ट का आउटकम है वो उतना कॉम्प्रोमाइज होना शुरू होता है. नेग्लिजेंसी, लोग कहते हैं डेंटल ट्रीटमेंट महंगा है, डेंटल ट्रीटमेंट महंगा नहीं, आपकी नेग्लिजेंसी हैज कॉस्ट द ट्रीटमेंट. जो एक इनिशियल अगर किसी टूथ में आपको पेन होना शुरू हुआ, आपने पेन किलर करके उसको इग्नोर किया, तो सब शायद एक सिंगल सिटिंग में काम हो सकता है. सिंगल सिटिंग अपॉइंटमेंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज में आपका काम हो सकता है. जितना आप डिले करते जाएंगे उतना रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज होगा, उतना अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ेगा. सो ये एडवाइस है मेरे लोगों के लिए. सर मैंने आपसे पूछा आपके लिए, आपके पास यूथ के लिए कोई मैसेज है, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया. एक आपके पास ओल्ड एज के लोगों के लिए, बिकॉज ये जो डिपेंडेंसी रेशियो वाले जो एज ब्रैकेट में लोग आ जाते हैं ना, वो अपने आप को प्रायोरिटी में रखते ही नहीं है. तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए भी मैम ये कि ऐसे कहते हैं कि ज़माना बहुत ख़राब आ गया, आजकल का ज़माना ऐसा है वैसा है. ज़माने में हमेशा बदलाव आते रहेंगे. जब वो यंग थे तब कई सारे माइनस पॉइंट्स थे जो उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं आते थे, उनके पेरेंट्स तब उनके पसंद नहीं आए. तो परिवर्तन संसार का नियम होता है मैम, परिवर्तन को हमेशा स्वीकारना चाहिए. और ये बात है कि फेथ होना चाहिए उनको कि भाई उनके जो बेटा बेटी या पोता पोती, उनको उनमें फेथ होना चाहिए कि भाई हाँ वो कुछ गलत नहीं करेगा. आप देखिए, जैसे समझाया जाता है कि फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, गलत बात है. फ़ोन यूज़ करने तो उसे कैसे यूज़ करना है वो नहीं सिखा दीजिए आप, वो कभी गलत यूज़ नहीं करेंगे. सेकंड, चॉकलेट खाने से दांत में कैविटी होती है, प्योर गलत बात मैम. चॉकलेट खाने से कभी दांत में कैविटी नहीं होती. चॉकलेट खाने के बाद अगर उसे क्लीन नहीं किया जाएगा मैम तो उसमें दांत में कैविटी होती है. सो ये सारा जो नॉलेज है, ये एक
जो ओल्ड एज वाले एक्सपीरियंस लोग हैं वही शेयर कर पाएंगे मैम। तो उन्हें अब सामने से चल के जिनको शेयर करना चाहिए, उन्हें अपने बच्चों में, पोतों पोतियों में, अपने में, उनमें फेथ, ट्रस्ट रखना चाहिए। और बचपन और बुढ़ापा एक जैसा होता है मैम, बस फर्क इतना होता है कि बचपन में अगर बच्चा गलती करे हम उसे डांट सकते हैं, बुढ़ापे में उसे डांट नहीं सकते। बचपन में उसे गोद में उठा के यहाँ वाले जैसे, बुढ़ापे में हमें उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना वो दिक्कत आती है। सो पेशेंस चाहिए होता है इन दोनों ही एज ग्रुप को ट्रीट करने के लिए। पेशेंस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। और लिसनिंग हैबिट, उन्हें चाहिए, कोई उन्हें सुनना चाहिए, वो बोले और सुने, बस उन्हें वो कुछ पल ही चाहिए होते। सो आप इस तरीके से अपने फैमिली रिलेशन, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को आप बहुत अच्छे हेल्दी वे में डेवलप कर सकते हैं और मेंटेन रख सकते हैं। सर जैसे अभी आपने बोला कि लोगों के दिमाग में ये मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि मीठा खाने से दांतों में कैविटी होती है, ऐसे और कोई मिसकॉन्सेप्शन या जो आप क्लियर करना चाहें? वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट रिगार्डिंग दांत को रिमूव करना, टूथ एक्सट्रैक्शन, कि भाई दांत को निकालने से आई साइट कमजोर होती है, टोटली रॉन्ग है। अगर मैं यहाँ की स्विच ऑन ऑफ करूंगा या इस माइक में कुछ चेंज करूंगा, वो आपके माइक में तो कोई इफेक्ट करने वाला नहीं है। सो जो भी नर्व्स कनेक्शन है वो सारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होता है, उनका सेंटर पॉइंट सेम है, लेकिन बाद में वो डिवाइड हो जाते हैं। सो दांत की जो सप्लाई होती है, जो नर्व, जो नस उसे सप्लाई करती है वो डिफरेंट है, आंख की अलग होती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको ओल्ड एज में बोला कि ओल्ड एज में क्या 3 चीज कॉमन, आंख, घुटना और दांत। सो पहले पेशेंट फेस करेगा कि दांत का उसे इशू आ रहा है, जब उसका दांत का पेन चला जाएगा ना, तब उसको ध्यान में, अच्छा मेरे विजन भी तो वीक है, उसका भी मुझे कराना है, तब उसे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने दांत निकलवाया बोल के मेरे आंख का विजन कॉम्प्रोमाइज हुआ, ताकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर कोई टिप्स जो आप ऑडियंस को देना चाहते हैं सो दैट उनकी डेंटल हेल्थ अच्छी हो जाए और डिटोरिएट कम हो? मैम अगर ऐसी टिप्स मैं आपको दे लूँगा तो हम डेंटिस्ट लोगों का प्रोफेशन बंद हो जाएगा मैम, लेकिन दिल बड़ा रख के स्टिल मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा मैम। बेसिक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्लीनिंग एंड क्लीनिंग ओनली मैम। आप अगर खाना भी खाते हैं, ब्रश नहीं कीजिए, आप गार्गल कर लीजिए ताकि कोई फूड पार्टिकल्स उसमें स्टिक नहीं रहे। सेकेंड है, पेस्ट आप ये यूज़ करें, वो यूज़ करें, जो आपके टूथ वाला पार्ट है, जो गम्स वाला पार्ट है, उसमें फूड पड़ा नहीं रहना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि आई सजेस्ट कि आप सुबह उठ के ब्रश करो कि नहीं करो, रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन का खाया हुआ रात तक फर्मेंट होता है, वो और सड़न देता है। सो ऑलवेज मेंटेन हाइजीन एंड क्लीनिंग। कई लोग बोलते हैं कि हर 6 महीने में दांत साफ कराओ, क्यों? एक बार दांत साफ करा के आप उसे मेंटेन नहीं रख सकते। सो हमेशा अपनी चीज़ों को मेंटेन रखना सीखिए। अगर आप इन हाइजीन, मेंटेन और ये सारी चीज़ देखेंगे मैम, आप 80 to 90% ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड कर सकते हैं, चाहे कोई भी एज ग्रुप। If one require any other further information from sir or want to connect to sir, they can visit the website which is simpladentclinics.com. For appointment bookings only, not for any treatment options or for quotation price. You can visit to my clinic, Simpladent Clinic. It is located in Surat, one of the growing city, diamond city, you can say. You are most welcome.